प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें फजल दिया प्रभु, कि भवन में यहाँ बच्चों के साथ हाजिर हो सकें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे बीच में आए और प्राथमिकता पाएं, और आप ही आकर हमसे हम कलाम हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमारे बच्चे प्रभु आपके नेचर और बिहेवियर में ढल सकें प्रभु। ओ खुदावन यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावन कि इस कम उम्र में आप इनसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, हमारे पास एग्जाम्पल है बाइबल में प्रभु। सैमुअल जो छोटा था खुदावन, आपने उससे बातचीत करी प्रभु, अपने भेदों को उसको बताया प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। मेरी प्रार्थना हमारे पास से भाई को बड़ी बरकत दें, हमारी संडे स्कूल की टीचरों को आप बड़ी बरकत दें खुदावन, जिन्होंने अपना योगदान दिया प्रभु यीशु मसीह। खासतौर से भाई टाइटस को जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्रभु, बड़ी बरकत दें। ओ खुदावन यीशु मसीह, इस उम्र में वो आपके भवन में लगातार आते हैं खुदावन, सेवा में अपने हाथ को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप बड़ी बरकत दें खुदावन। तमाम म्यूजिशियंस और जो हमारे प्रसारण वाले भाई हैं खुदावन, बड़ी बरकत दें प्रभु। और खुदावन वो तमाम भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से आज की सभा को सुन रहे हैं प्रभु, बड़ी बरकत दें खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। हर चीज को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं खुदावन, और इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 141 इंग्लिश सेक्शन से आपके पास गाने की किताब होगी। इंग्लिश की किताब निकालें। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus। तो रिवर्ब डाल दे। Amen, hallelujah। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus। What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus। Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus for my cleansing. This I see, nothing but the blood of Jesus for my pardon. This my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Blood of Jesus, nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing the blood of Jesus. This is all my and peace, nothing but blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Now by this I'll overcome. That's right, nothing but the blood of Jesus.
Now by this I'll reach my home. Nothing, the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I've known. Nothing, blood of Jesus. Glory, glory, thus I sing. Nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I've known. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I've known. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. There's nothing, only the blood of Jesus Christ which can atone our sins. Amen. Hallelujah. Praises to his wonderful name. और जबकि हम लोग सब खड़े हैं, आइए उस कोरस को गाएंगे. Only believe all things are possible. Just looking on the author and finisher of our faith. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. You believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all my Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम निकालेंगे नीति वचन और उसका पहला अध्याय। और उसकी 7वीं आयत।
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. दुआ खुदावन, आइए हमसे बातचीत करें इससे पहले कि संडे स्कूल की हम पीटीएम शुरू करें, और तमाम हमारे भाई बहन जो पेरेंट्स भी हैं अपने वार्ड्स के साथ टीचर से मिलें और उनके बारे में सुनें। खुदावन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसका ताल्लुक़ हमारे बच्चों से है। खुदावन यीशु मसीह, आप दुआ है कि आएँ और हमें ब्लेस करें, और ये तमाम बच्चे जो आए हैं आपकी ओर से आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि अधिकांश लोग यहाँ पर आप हाजिर हैं, सो खुदा ना आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दें। आप जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों के लिए, खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। बच्चे खुदावन की देन है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी सही परवरिश करें। और खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बड़ी प्यारी कलीसिया बख्शी, जिसके माध्यम से एक फोरम हमारे पास है संडे स्कूल का, जिसके द्वारा हम बच्चों तक कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करें जो हम सिखाते हैं और संदेश में पढ़ाते हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बच्चे ही बढ़ रहे हैं, और आगे चल के यही बच्चे जो हैं स्थान लेंगे अपने माँ बाप का, स्थान लेंगे एक कलीसिया में खंबे होने का। सो खुदावन का धन्यवाद हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जिसमें कि आप और हम यहाँ आए हैं। तमाम भाइयों बहनों को और बच्चों को मैं कहूँगा गॉड ब्लेस यू, आप लोग यहाँ आए हैं। मैं नबी का संदेश पढ़ रहा था, तो गॉड्स चोजन प्लेस ऑफ वर्शिप 1965 में नबी ने जिक्र किया संडे स्कूल का, और संडे स्कूल को बताया कैसे इंग्लैंड में ये चालू हुआ उन बच्चों के साथ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, जिनके पास कोई था नहीं। तो एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट रेक्स, जिसने कि इस काम को चालू किया, और चालू करके उसने उन बच्चों को इकट्ठा किया जिनका कोई नहीं था, और उन्हें बाइबल की शिक्षाएं देना चालू करी। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस बनी जो कि फिर फैली, और फिर आज विश्व भर में जगह जगह ये चीज़ें होती हैं। नबी के चर्च में भी हुआ, और उसी पैटर्न पे दिल्ली की कलीसिया ने आज नहीं कई सालों पहले से एक सेक्शंस बनाए, संडे स्कूल का जूनियर सेक्शन, संडे स्कूल का सीनियर सेक्शन, ताकि वचन को सुने समझें। जो छोटे बच्चे हैं हम उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते, लेकिन मेरी हमेशा से ये शुरू से एक बात रही कि बच्चे आयतें याद करें। इससे इनका दोहरा फ़ायदा है, इनका दिमाग चलेगा, और जब आयतें दिमाग में घुसाएंगे तो इनकी अपनी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर आप वचन को स्मरण करेंगे तो पवित्र आत्मा उस वचन पे काम करेंगे, फिर सिचुएशन आने पे वही वचन काम करता है ना। आज मैं प्रिलिमिनरी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है, और प्लस बच्चों आप लोगों को भी वापस अपने जाना होगा। खुदा उनका धन्यवाद हो। इस साल पिछले 2 साल से हमारा संडे स्कूल इस रूप में नहीं हो पाया कि जैसे कि होता था, क्योंकि आपको मालूम है चर्च की मीटिंग्स नहीं हो पाई और लॉकडाउन था। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि संडे स्कूल जूनियर और सीनियर सेक्शन का लास्ट ईयर से पहले से थोड़ा हमने चालू किया ऑनलाइन क्लासेस, और ये उम्मीद करी गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास में बिठाते होंगे और बेसिकली संडे स्कूल अटेंड कराते होंगे। ये देखा गया जिन बच्चों की परफॉर्मेंस संडे स्कूल में बढ़िया थी, उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में बढ़िया थी। हमारी आपके एनी हाउ नाउ, मैं सोचता हूं कि आप एक माँ बाप होने के नाते आपके पास भी एक दर्शन होगा बच्चों को लेके।
हम आपके दर्शन को शेयर करते हैं और उसमें कोशिश करें कि चार चांद लगें अगर हम कुछ वचन की बातें समझें। क्योंकि अगर आप वचन को देखें, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, सब सुनेंगे, तो 4 बच्चे थे, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया कि वो बाबुल के खाने को नहीं खाएंगे। उसका रिजल्ट क्या मिला? फाइनली जब उनका एग्जाम हुआ तो सबसे 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान गिने गए। क्या सच्चाई है? ना ध्यान से सुनिए। खुदा रहम करे कि आज मैं संडे स्कूल जो कि सीनियर सेक्शन था उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं करूं, मैं बोलना चाहूंगा जूनियर सेक्शन का कोई एज सच टेस्ट हुआ नहीं और ज़्यादा हमने अपेक्षा करी भी नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते मुझे एक शॉर्ट वीडियो दिखाई गई। मैं तमाम जूनियर सेक्शन के बच्चों को गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए। कुछ शक्लें मेरे सामने हैं बच्चों की जिन्होंने काफ़ी लंबे लंबे पैसेजेस याद किए और बोले। आपको खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें। कीप इट अप। फिर आते हैं सीनियर सेक्शन के ऊपर। सीनियर सेक्शन का अभी टेस्ट हुआ था जो कि ओवरऑल एक सिलेबस जो ईयरली भाई मेरी ऑफ कोर्स निगरानी में भाई टाइटस, सिस्टर वाइला, सिस्टर सुजैना मार्टिन, ये लोग डिस्कस करते हैं, मेनली भाई टाइटस। उस सिलेबस के अनुसार पूरे साल भर ऑनलाइन क्लासेस ली गई, बच्चों को पढ़ाया गया। उसके ऊपर एक टेस्ट हुआ ना, उसका फिर मेरे पास आज रिजल्ट भी है और खुदावन का धन्यवाद हो कि मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। और इसी के साथ साथ मैं जो क्वेश्चन पेपर दिया मैंने बच्चों को डिस्कस करना चाहूँगा। आप पेरेंट्स भी जो बैठे हैं इसको आप सुन सकते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। ये अच्छा, ये लाइट जल रही है, ठीक है, प्रेज लॉर्ड। नाउ इस साल 17 जुलाई को सीनियर सेक्शन का टेस्ट हुआ। टोटल कैंडिडेट्स 49 थे, जिसमें 46 बच्चे अपीयर हुए, 3 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने टेस्ट दिया, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया रखा गया है पास के लिए, 46 में से 27 बच्चे पास हैं, 19 बच्चे फेल हैं। आपकी समझ में आ रही है? तो पास फेल का रेशियो अबाउट 60-40 का कुछ ऐसा है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। जो टॉपर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंकरेज करूंगा, जिन्होंने टॉप किया वो हैं आराधना एस्तर। आप खड़ी हो सकती हैं बेटा? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इनके मार्क्स हैं 64 आउट ऑफ 100। सेकंड है अनुग्रह डेविड। अनुग्रह डेविड आए हैं, गॉड ब्लेस यू। डॉटर ऑफ ब्रदर सुनील डेविड, डॉटर ऑफ ब्रदर सुनील डेविड, वही हैं आप, गॉड ब्लेस यू। आपके 52 मार्क्स हैं। और उसके बाद थर्ड पे अर्पणा रूथ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, 48। और इसी थर्ड में कई हैं, सृष्टि राव, गॉड ब्लेस यू। रॉयन गॉडविन, रॉयन गॉडविन नहीं आए। एकता हैरिसन, गॉड ब्लेस यू। महिमा सैमुअल, महिमा सैमुअल आई हैं क्या? नहीं। एनी हाउ, ये हैं थर्ड। और फिर फोर्थ पे हैं गरिमा, गरिमा आई हैं। केलेब शर्मा,
आमोस मसीह, चलिए खैर नहीं आए वो। आमोस पॉल, जॉशुआ जॉन, गॉड ब्लेस यू। और फिफ्थ का भी चलिए मैं बोलता हूं, शिवा कश्यप, गॉड ब्लेस यू बेटे। रुएल जेम्स, स्कूल है। एनोश जॉन, गॉड ब्लेस यू। और अनान्या, डॉटर ऑफ विजय कुमार, गॉड ब्लेस यू। प्लीज सिट डाउन। सो यहीं तक हम डिक्लेयर कर रहे हैं। नाउ ओवरऑल जो रिजल्ट था वो आपके सामने है, बाकी टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगी। थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पेपर था, जैसा हर साल होता आया है। 25 क्वेश्चंस हैं जो हम देते हैं, 4 नंबर एक का होता है, तो 25 चौक 100 नंबर का एक पेपर होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर हमने अंग्रेजी में रखा। भाई से मेरा डिस्कशन भी हुआ और वो इंग्लिश में ही है। और कोशिश रहती है कि लोग बैठें और उसको देखें। मैं पूछता हूं, आप पेरेंट्स ने क्या क्वेश्चन पेपर देखा? क्या क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा भी नहीं, तो मिलेगा आज। चलो आज मिलेगा, तो आज देखने का वो मौका मिलेगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, सिद्धांतिक था, और थोड़ा सिद्धांत को जांचने के लिए कि हमने बच्चों ने सिद्धांत कितने, मैं बच्चों की खासतौर से कहूंगा, सिद्धांत समझे, उस चीज पे बेस था। कुछ चीजें थीं जो कि पूछी गई, शायद 1-2 सवाल होंगे जो कि लगा हो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो सिलेबस में ही था। लेकिन जो बाकी सवाल थे उसमें से कई सवाल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मैं एक एक करके चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूं, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं कोई बढ़ाई नहीं करता, मैं भी टाइम निकालता हूं, और मेरे को भी सोचने में टाइम लगता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन फ्रेम करूं। क्वेश्चन फ्रेम करना आसान जॉब नहीं है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेहनत मैंने करी उसका फायदा बच्चों तक और आप पेरेंट्स तक ट्रांसफर ना होने पाए। कुछ बच्चों से मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी अपेक्षाएं ज्यादा थी, बट दे हैव परफॉर्म वेरी हॉरिबल। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, बट नो प्रॉब्लम्स। जैसा कि हर पीटीएम में होता आया है, यही बोला जाता है कि एक स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो मैं भी कहूंगा कि आप इंप्रूव करें और आगामी टाइम में देखें कि आप क्या करते हैं। सबसे पहला सवाल, Jehovah of the Old Testament is our Lord Jesus Christ of the New, is connected to a vision of Brother Branham which came on। इसमें 4 चॉइसेस दी थी। पुराने अहदनामे का यहोवा हमारे नए अहदनामे के प्रभु यीशु मसीह हैं, एक दर्शन से जुड़ा हुआ है जो हमारे भाई ब्रैनम के पास आया। तारीख पूछी गई थी, अगस्त 7, अगस्त 25, सितंबर 5, जुलाई 3। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है अगस्त 25। नाउ नोटिस करें, अगस्त 7 डेट अगर आपको याद हो तो प्रचार हुआ था, जो मीटिंग्स में रेगुलर आप लोग बैठते हैं। अगस्त 7, 1957 वो डेट थी जब 2 हाथ उतर के आए थे और उन्होंने यहोशू पहला अध्याय खोला था। आपको याद है? तो जोशुआ की कमीशन मिली थी, नबी को बाइबल खुली मिली और तमाम चीजें, वो तारीख थी अगस्त 7। लेकिन ये दर्शन कि यहोवा पुराने अहदनामे का नए अहदनामे का प्रभु यीशु मसीह हैं, ये
दर्शन में भाई ब्रनम ने एक मुकाशवे के रूप में पाया। तारीख थी 25 अगस्त। संदेश का नाम है मैसेज ऑफ ग्रेस। मैं आपके सामने उस कोट को भी निकाल के पढ़ता हूं ताकि आपको मालूम है कि यह सवाल कहां से दिया गया, आपको समझ में आएगा। एक मिनट होल्ड करें, मैं पढ़ रहा हूं 23वें पैराग्राफ की आखिरी लाइन। आपको याद है नबी ने बादल देखे, धुंध देखी और 3 मेघधनुष देखे जो कि एक कप के अंदर जा रहे हैं, बोल के अंदर जा रहे हैं। याद है आपको ना? क्योंकि सिलेबस में गॉड हेड था। सिलेबस में आपके जो सीनियर सेक्शन थे गॉड हेड था, तो ये अपेक्षा करी जाती है और उसमें ये लाइन भी थी। जब सिलेबस मुझे दिया गया उसमें ये लाइन लिखी गई, जहोवा ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट इज जीसस क्राइस्ट ऑफ द न्यू। नो डाउट गॉड हेड समझाने के लिए लाइन समझानी पड़ती है, तो ये अपेक्षा करी जाती है कि ये लाइन फिर आपको मालूम हो कि हमारे नबी के पास कब आई एक रेवलेशन की बतौर। तो नबी कहते हैं 3 रेनबोज देखे और तब नबी कहते हैं दैट वॉज ऑगस्ट द 25th, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यू नो हाउ इट वॉज रेनिंग एंड इट स्मूथ क्लाउड्स एवरीवेयर। और वो अगस्त 25 था, लास्ट फ्राइडे सुबह। नबी कह रहे हैं जो बारिश हो रही थी और स्मूथ बादल थे। एंड आई लुक्ड अगेन एंड देयर इट वॉज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर, 3 रेनबोज। और फिर वो बढ़ता गया, 3 मेघधनुष। आई टुक ऑफ माई हैट, मैंने अपना हैट उतारा। आई सेट डाउन माई गन। और तब आपको मालूम है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, मैं जल्दी बढ़ूंगा आगे। और कैसे वो तीनों मेघधनुष एक बोल के अंदर चले गए। 25वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। आई टर्न एंड लुक्ड अगेन, आई स्क्रीम्ड आउट, ओ गॉड व्हाट वुड यू हैव योर सर्वेंट नो। हे खुदावन, क्या चाहते हैं कि आपका दास जाने। जस्ट देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम इन एंड सेड, उसी समय प्रभु का आत्मा आया और उसने कहा, जीसस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज जहोवा ऑफ द ओल्ड। नए ऐदनामे के यीशु मसीह पुराने ऐदनामे के यहोवा हैं। ही ओनली ही चेंज हिज मास्क फ्रॉम स्पिरिट टू मैन। उन्होंने केवल अपना मास्क बदला आत्मा से एक मनुष्य की तरफ। सो दैट वे आपको मालूम है, ये जवाब आपको मिल चुका। गॉड ब्लेस यू। मैं सोचता हूं आपको समझ में आया होगा। द डेट वॉज ऑगस्ट द 25th, 25 अगस्त थी वो डेट। अगला सवाल थोड़ा सा सिद्धांतिक था। फॉलोइंग अ राइट कंडक्ट एग्जाम्पल, सवाल ध्यान से सुनिएगा। फॉलोइंग अ राइट कंडक्ट एग्जाम्पल, ओबेइंग पेरेंट्स, बीइंग सब्जेक्ट टू पेरेंट्स, सिटिंग क्वाइटली इन द चर्च, नॉट पासिंग नोट्स, इज अ साइन that the person is God seed, choice A, choice B, serpent seed, choice C could be both, choice D is a wise virgin. Now, क्या है इसका सही जवाब? कॉन्सेप्चुअल सवाल था, अब इसका जवाब समझने की कोशिश करें। मैं सबके लिए बोल रहा हूं ताकि सब समझ सकें। एक सही आचार विचार रखना, हिंदी करूं क्योंकि कई हिंदी समझते हैं। माँ बाप की आज्ञा मानना, माँ बाप के अधीन रहना, चर्च में शांत बैठना, नोट्स को पास नहीं करना, ये चिन्ह है कि वो व्यक्ति खुदा का वंश है, सर्प का वंश है, दोनों ही हो सकते हैं, बुद्धिमान कुंवारी है। आपका क्या विचार है? कितने कहते हैं गॉड सीड? नो प्रॉब्लम। जो ऐसा करता है वो खुदा का बीज है, हाथ उठाएं। गॉड ब्लेस यू, बैठिए। सरपेंट सीड, कितने कहते हैं सर्पवंश है? क्या इसमें तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। चॉइस सी, दोनों ही हो सकते हैं, खुदा का बीज भी, सर्प का वंश भी। कई हाथ उठे हैं। डी, ये बुद्धिमान कुंवारी के लक्षण हैं, हाथ उठाएं। इस पे भी ज्यादा हाथ नहीं दिखाई दे रहे। इसका सही जवाब है दोनों ही हो सकते हैं।
कारण अब यहां एक सिद्धांत है, जो आपका टेस्ट हुआ इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा, क्योंकि कंडक्ट ऑर्डर सिखाया जाता है बच्चों को, तो बच्चों को यह बात मालूम होना चाहिए और माँ बाप को भी कि बच्चा आज्ञाकारी है, माता पिता के अधीन है, चर्च में शांत बैठता है, बहुत बढ़िया बात है और ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन क्या ये एक प्रूफ है कि ये खुदा का वंश है? कैसे कह सकते हैं? नबी ने संदेश में क्या सिखाया? सारा का सारा धर्म कैन के पास था। कैन भी चर्च आता था, कैन भी अच्छे काम करता था, तो ये सारे अच्छे काम कैन कर सकता है, लेकिन कैन के पास क्या नहीं था? रेवलेशन। समझ में आ रही है आपके? तो ये ध्यान रखें, जब चर्च कंडक्ट ऑर्डर डॉक्ट्रिन सिखाया जाता है तो उसका मतलब है हां आमीन। इस सवाल से ये नहीं कहा जा रहा कि अब आप सही ना बैठें और माँ बाप की आज्ञा ना माने। नहीं 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 नहीं, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। माँ बाप की आज्ञा माननी है, माँ बाप के अधीन रहना है, लेकिन इसके ऊपर कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? वचन का प्रकाशन। और कौन सा वचन? जो आज का है। यह है साबित करेगा कि आप खुदा के वंश हैं या खुदा के वंश नहीं हैं। सो राइट चॉइस है, दोनों ही हो सकते हैं। तीसरा सवाल था कॉन्डिसेंशन ऑफ गॉड विथ 3 स्टेप्स। 3 सीढ़ियों में खुदा का अपने स्थान से नीचे उतर के आना किस संदेश में समझाया गया? चॉइस ए, गॉड हैड एक्सप्लेन्ड। चॉइस बी, क्वेश्चन एंड आंसर सील्स। चॉइस सी, लुक अवे टू जीसस। चॉइस डी, हु इज दिस मल्कीसेदेक? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस आंसर। सबसे पहली बात, यह संदेश पढ़े हों। समझ मारिए आपके? खैर, बच्चों से इतनी मैं अपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अपेक्षित होंगी, क्योंकि अब सीनियर सेक्शन के बच्चे बड़े हैं और वो चर्च में बैठते हैं, और चर्च में एक बार नहीं कई बार इन बातों को समझाया गया। खुदावन का 3 स्थितियों में नीचे उतरना मनुष्य जाति के पास किस संदेश में समझाया गया? इसका राइट आंसर है, ये मल्कीसेदेक कौन है? हु इज दिस मल्कीसेदेक? दैट्स द राइट चॉइस। व्हाई? यह है वो संदेश जहां नबी ने 3 स्थितियां समझाई: खुदा आत्मा, खुदा वचन, खुदा देह, जिसमें कि वो ऊपर से नीचे उतर के आए हम मनुष्य जाति के पास। इज दैट राइट? तो संदेश का नाम है हु इज दिस मल्कीसेदेक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्डिसेंशन ऑफ गॉड। खुदा का नीचे उतरना 3 स्थितियों में: किंग गॉड आत्मा, किंग थियोफनी वचन, किंग ऑफ किंग्स यानी कि शरीर, जिसमें कि वो प्रकट हुए जब वो पृथ्वी पे आए। आप समझ में आ रही है? खुदावन जब हम मनुष्य जाति के पास आए, ये सवाल भी एक्चुअली गॉडहेड के ऊपर बेस्ड था। आपको याद है कैसे वो पहले आत्मा थे, फिर आत्मा से लोगोस बने जो कि वचन है, और फिर वचन से फिर वो वचन देधारी हुए। सच्चाई है। गॉड ब्लेस यू। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये नबी ने डिटेल में किस मैसेज में पढ़ाया। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो संडे स्कूल के सीनियर सेक्शन के बच्चे हैं, घर में आपके 100% पेरेंट्स जानते हैं किताब होगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इस संदेश को बैठ के पढ़िए और देखिए कि गॉडहेड का एक एस्पेक्ट कि आत्मा, फिर वचन और फिर शरीर कैसे नबी ने समझाया बड़ी डिटेल में। यह है वो मैसेज जिसमें समझाया गया हु इज दिस मल्कीसेदेक। 3 जो पुरानी चॉइसेस हैं उनके बारे में बता दें। गॉडहेड एक्सप्लेन में नबी ने खुदाइयत क्या है, बपतिस्मा क्या है, ये ज़्यादा डिटेल में समझाया। क्वेश्चन एंड आंसर सील्स में विभिन्न चीज़ें हैं जो समझाई। उसमें कॉन्डिसेंशन टच किया, लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि टच करी, तो एक नॉन स्पेसिफिक आंसर था। टच तो इसमें भी किया,
लेकिन अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ था चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि 2 सवाल भी जवाब सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सही जवाब कौन सा है। आपकी समझ में आ रही है? तो जो बिल्कुल सही जवाब है इसका वो है हु इज दिस मल्कीसेदेक, क्योंकि पूरा संदेश ही इसी पॉइंट पे गया है। लुक अवे टू जीसस में क्या समझाया बच्चों? मैं सीनियर सेक्शन के बच्चों से पूछ रहा हूं, यीशु की ओर देखो, लुक अवे टू जीसस कितनी बार हम चर्च में मन से बोल चुके हैं। इस मैसेज में क्या नबी ने बताया? कम ऑन नाउ, चलिए आप जो मां बाप हैं बताएं। यीशु की ओर देखो, लुक अवे टू जीसस, ये संदेश किस लिए? हाँ भैया बताएं। वो तो भैया हर मैसेज में बताया। लुक अवे टू जीसस में मेन चीजें क्या बताएं? भाई बता रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है इस चीज के ऊपर। लगभग किसी ने जवाब नहीं दिया। लुक अवे टू जीसस का मैसेज जाना जाता है थर्ड पुल के 5 इंस्टेंसेस के लिए। डिटेल में नबी ने तीसरे खिंचाव के 5 इंस्टेंसेस इस संदेश में बताए। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि एक चॉइस डालनी थी तो मैं उसमें मैसेज में डाल दिया। लेकिन जो राइट चॉइस है वो है हु इज दिस मल्कीसेदेक। सवाल नंबर 4 आसान सा सवाल था, क्योंकि एक बार नहीं कई बार प्रचारा गया और कईयों ने इसका सही जवाब दिया भी है, और इसको मैं संदेश में से आपके सामने दिखाऊंगा। इनफैक्ट कुछ सवाल तो मैंने ऐसे दिए कि जिसमें कि आपके मार्क्स पक्के ही थे। बहुत डायरेक्ट सवाल थे जिन पे आप एकदम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, गॉड ब्लेस यू, आपने प्रोजेक्ट में डाल दिया। बिटवीन प्रीस्ट एंड किंग द लॉर्ड कम्स एज विच ऑफिस? याजक और राजा के बीच में प्रभु किस औहदे में आते हैं? चॉइस ए प्रॉफिट, चॉइस बी जज, चॉइस सी किंग्समैन रिडीमर, चॉइस डी प्रीस्ट किंग। आपका क्या विचार है? चलिए मैं हाथ उठवाता हूं। कितने कहते हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट। कितने कहते हैं जज? कितने कहते हैं किंग्समैन रिडीमर, निकट कुटुंबी? हाथ उठाएं। और कितने कहते हैं प्रीस्ट किंग? हाथ उठाएं। अधिकांश ने तो किसी चीज पर हाथ ही नहीं उठाया। यह भी गॉड हेड के तहत पढ़ाया गया था, सिखाया गया। एक पॉइंट था जिसको कि आपसे पूछा गया, प्रीस्ट और किंग के बीच में प्रभु किस ऑफिस में आते हैं? ये कई बार प्रचार हुआ, कई बार समझाया गया, और अपेक्षा थी कि बच्चे इसका जवाब देंगे। वैसे कईयों ने इसका सही जवाब दिया है, ऐसी बात नहीं है। इस सवाल का जवाब कईयों ने दिया है और जवाब बोला भी है उन्होंने। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जज। अब मैं आपके सामने नबी के संदेश में से पढ़ रहा हूं। आपको याद है बाइबल की वो आयत जो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखी है, जो था, जो है, जो आने वाला है। इस आयत को लेके गॉड हेड के सिद्धांत को समझाते हुए नबी ने समझाया, जो था यानी 2000 साल पहले आए थे, कैसे? एक नबी के रूप में। जो है यानी कलीसियाई कालों में महायाजक, प्रीस्ट। जो आने वाला है, कैसे? एक राजा। तो ये प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग क्या है? 2000 साल पहले वो नबी के रूप में आए, फिर कलीसियाई कालों में पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे महायाजक हैं, और फिर इसके बाद मिलेनियम में वो एक राजा के रूप में आएंगे। प्रॉफिट, याजक और राजा।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है याजक और राजा के बीच में किस ओहदे में वो आते हैं। अब ये संदेश, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड था आज के मैसेज के साथ। मैं आपके सामने कोट पढ़ रहा हूं, आप भी नोट करें, पेपर पेंसिल तो होगी आपके पास। संदेश का नाम है पटमोस विजन, पटमोस दर्शन। मैं उसका, मेरी किताब में तो 168 पैराग्राफ है, लेकिन जब आप उसको टेबल पे देखें तो शायद 155 पैराग्राफ है। बात कर रहे हैं प्रभु के दिन की। Now here's more proof that this doctrine is right about being the Lord's day. ये प्रूफ है कि ये शिक्षा जो हम दे रहे हैं प्रभु के दिन की सही दे रहे हैं। Did you notice him? क्या आपने उसे नोटिस किया? He was not a priest during this time. इस समय वो अब याजक नहीं है। Neither was he a king. प्रभु के दिन में जहां यूहन्ना आत्मा में आया, ना वो याजक है ना वो राजा है। सुन रहे हैं आप? He was not a priest during this time, neither was he a king. He was a judge. वो एक जज है। समझ में आ रही है आपके? और उसको प्रूव करने के लिए नबी ने बताया कैसे वो पटका बांधे हैं जो कि उनकी छाती पर है, और छाती पे सुनहरा पटका नबी ने समझाया न्यायाधीश बांधते हैं। नाउ तो मैंने आपको कोड भी दिया, संदेश का नाम भी बताया। आपको मालूम है, और ये एक इतना ग्लेरिंग सिंपल सवाल था जिसका कि जवाब मैं सोच रहा था कि सबको ही सही देना चाहिए, क्योंकि मिलेनियम में वो राजा होंगे, मिलेनियम में राजा होंगे। याजक का काम वो करके अपनी कुर्सी से उठे, पुस्तक लेके, एक बार नहीं हजारों बार प्रचार हुआ। याजक का काम करके उन्होंने पुस्तक उठाई ताकि मोहरें खोलें, लेकिन जब खुली किताब के साथ उतर के आए प्रकाशित 10 में, तो एक सफेद मुखौटा पहने हैं। ये सफेद मुखौटा बादल क्या है कि आप क्या हैं? जज। तो याजक और राजा के बीच में आप किस ऑफिस में आ रहे हैं? जज। मैं सोचता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। यह है सही जवाब। सवाल नंबर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, कुछ नहीं, सिर्फ एक याद करने वाला सवाल था। टू प्रूव दैट आवर लॉर्ड जीसस इज गॉड, विच इज द राइट कॉम्बिनेशन। यह साबित करने के लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही खुदा हैं, कौन सी सही आयतों का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसका सोर्स दूं। यह सवाल सिलेबस में मुझे दिया गया तो मैंने डायरेक्टली वहां से उठा के दिया, लेकिन एक्चुअली इसका सोर्स है एक गोला जिसे कहते हैं व्हील ऑफ प्रोफेसी। क्या आप मेरे पास व्हील ऑफ प्रोफेसी कोई भाई दिखा सकता है? व्हील ऑफ प्रोफेसी, जिसमें कि आधा सेक्शन गॉड की आयतों पे है, आधा सेक्शन जीसस की आयतों पर है। और अगर आपके पास नहीं तो इस व्हील ऑफ प्रोफेसी को आप प्रोक्योर कर लें, होगा आप में से हर एक के पास ही होगा। चलिए आप क्वेश्चन ही डाल दीजिए। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं। सिलेबस में जो मुझे मिला, जो छपा हुआ था, वही उठा के मैंने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था और इसका आंसर है ए। यशाया 47:4, हिब्रूज 9:12, चॉइस ए। बाकी जो आयतें हैं वो मैच नहीं कर रही। इसमें पहली सेक्शन की आयतें हैं ये प्रूव करती हैं कि खुदा क्या है, और दूसरी सेक्शन की आयतें प्रूव करते हैं कि यीशु मसीह भी वो ही हैं। तो से प्रूव होता है कि खुदा ही यीशु मसीह हैं। आपकी समझ में आ रही है? तो ये व्हील ऑफ प्रोफेसी के ऊपर सवाल था। अब आप पूछिएगा, किसी से पूछे भाई व्हील ऑफ प्रोफेसी के बारे में भाई बात कर रहे थे, व्हील ऑफ प्रोफेसी मेरे पास तो है नहीं, करिए प्रोक्योर। और व्हील ऑफ प्रोफेसी मैं चाहूंगा हर बच्चे के पास हो। ये व्हील ऑफ प्रोफेसी मेरे ख्याल में दी भी है, क्योंकि जब मेरे को पिछले टेस्ट याद है उसमें व्हील ऑफ प्रोफेसी बच्चों को दिया गया था। तो घरों में व्हील ऑफ प्रोफेसी होगी। यह सवाल नबूवत की चक्री से था, नबूवत की चक्री जो बांटी गई थी और दी गई थी, छपाई गई थी, दी गई थी। एनी हाउ, सवाल नंबर 6, कंफर्मेशन ऑफ द कमीशन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी, कार्यभार दिया
जिसे हम अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। जाओ सारी जाति के लोगों को प्रचार करो। सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल 6 ये है, कन्फर्मेशन ऑफ द कमीशन। जो कमीशन खुदावन ने चेलों को दी उसकी पुष्टि। चॉइसेस प्रेरित 2, मत्ती 12, मत्ती 28, मरकुस 16। जवाब सुनिए इसका। आप सही बोल रहे हैं, सही जवाब प्रेरित 2 है, लेकिन मैं समझाना चाहूंगा क्यों है। समझाना चाहूंगा क्यों है। मत्ती 12 में चेलों को यीशु मसीह ने पहली कमीशन दी। चॉइस मत्ती जो 12 है, मत्ती 12 में चेलों को पहली कमीशन दी कि जाओ और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों में जाके प्रचार करो। फिर मत्ती 28 में जी उठने के बाद यीशु मसीह ने आखिरी बड़ी कमीशन दी कि अब सारे जगत में जाओ, प्रचार करो। मरकुस 16 में वही कमीशन जो मत्ती 28 में मरकुस 16 में लिखी है कि विश्वासियों के चिन्हों को हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, जहरीली वस्तु पी जाओ, उन्हें कोई हानि ना होगी। तो मरकुस 16 भी कमीशन है, मत्ती 28 भी कमीशन है, मत्ती 12 भी एक कमीशन का ही स्क्रिप्चर है, लेकिन वो है पहली कमीशन। तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। यीशु मसीह ने चेलों को 2 बार कमीशन दी, याद है आपको? पहली बार जब कमीशन दी तो यह कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों में जाके प्रचार करो। फिर मरने जी उठने के बाद जब दूसरी बार कमीशन दी, कहा अब सारे जगत में जाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हैं, के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो मत्ती 28 मरकुस 16 एक ही स्क्रिप्चर है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। कहां लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। He that believeth and is baptized shall be saved. मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, अभी चैप्टर भूल जाओ। मार्क 16 याद कर लीजिए। ये बातें आपसे याद क्यों करा रहे हैं कि आप भी टकराएंगे नयों के साथ, तो ये आयतें आपको तो यूं मालूम होना चाहिए। साल्वेशन आर्मी वाली कहते हैं झंडे के नीचे बपतिस्मा दो, कुछ कहते हैं बपतिस्मे की जरूरत नहीं। वहां की काट ये वाली आयत है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। यानी बपतिस्मा उद्धार के लिए जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है भाई, सब बोलो, समझ मारिए आपके। एनी हाउ, मरकुस 16, मत्ती 28, मत्ती 12 ये कमीशन थे। कंफर्मेशन ऑफ द कमीशन क्या थी? एक्स 2 तो था, आपने सही चॉइस बता दी, गॉड ब्लेस यू, मार्क्स मिल गए आपको। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कुछ और। कंफर्मेशन यानी कमीशन की पुष्टि क्या थी? इस पे क्या भाई ब्रैनम ने एक मैसेज प्रीच किया? पहले बताएं कितनों ने पढ़ा वो मैसेज? कंफर्मेशन ऑफ द कमीशन नाम का एक मैसेज है पूरा भाई ब्रैनम का, 1962 का मैसेज है। क्या आप में से किसी ने नहीं पढ़ा? एक भाई ने हाथ उठाया। और मैं पूछ रहा हूं बाकी जो बैठे हैं, अब तो मैं पेरेंट्स की तरफ भी मुखातिब हूं। लो यार, एक इतना इंपॉर्टेंट मैसेज जो आया, छपा, दिया गया और आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं हो। आइडिया ही नहीं है आपको। नबी ने स्पष्ट तरह से समझाया, खुदा ने कमीशन दे दी थी पहाड़ पे, जाओ सारी जाति के लोगों पर प्रचार करो, लेकिन यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा से ना भरो, यानी सामर्थ तुम्हें ना मिले। पवित्र आत्मा जब आएगा, तुम्हारी जो सेवकाई है, कार्यभार है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसकी पुष्टि होगा कि अब तुम निकल सकते हो काम के लिए। कमीशन तो सबको दे दी, लेकिन कंफर्म किसके साथ किया? जिनके साथ कंफर्म किया वो फिर एक
कमरे में गए और उन्होंने फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आपकी समझ में आ रही है? तो वाचा की पुष्टि कब हुई? देखो प्यारे भाई, कुछ चीजें हैं जिसके बिना बात बनेगी नहीं। एक खुदावन के जन होने के नाते, कलीसिया के सदस्य होने के नाते आपके पास मौका है कि आप नयों के पास जाएं, जो शायद आप जाते भी होंगे। आपको ये बेसिक बातें नहीं मालूम, तो आप ये फिर सोचिए कि आप क्या बताएंगे। आप एक पेंटिकॉस्टल से किस ग्राउंड पे लड़ेंगे? या फिर वही करोगे, भैया एक कांटेक्ट बना लिया, उस भाई को लेके आते हैं, वो भाई समझाएगा, हम तो समझा नहीं पाएंगे, कारण हम खुद नहीं समझे। याद रखिएगा, उद्धार व्यक्तिगत है। संदेश खूबी से मैं जानता हूं, ये इंग्लिश में प्रचारा संदेश था, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक संदेश है नबी का 1962 का। वैसे तो खैर संदेश तो है ही है, लेकिन इसको अलग से भी प्रचार किया गया मीटिंग्स में, कि जो कार्यभार यानी सेवकाई मसीह ने चेलों को दी, उसकी पुष्टि कब हुई? जवाब, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। संदेश पूरा का पूरा एक मैसेज है, कंफर्मेशन ऑफ द कमीशन, 1962 का है। घर जाइए पढ़िए। तो इसका राइट जवाब है प्रेरित काम एक्स 2। 7वां सवाल, हाँ इसको मैं कहूंगा ये थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल था, लेकिन घुमा हुआ भी नहीं था। इसके बारे में भी पिछली मीटिंग्स में हिंट्स दिए गए थे। बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज रिवील्ड इन द बुक ऑफ रेवलेशन। अब देखिए, प्रेरित 2, प्रेरित 8, प्रेरित 10, प्रेरित 19, तो फटाफट याद कर लिया नहीं? लेकिन सवाल ये नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जैसा प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रकट हुआ। भाई आशीष, ये सवाल कहां से बना? अच्छी तरह याद है, क्योंकि इसके बारे में चर्च में प्रचार हुआ था, और ये सवाल यहां से बना। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोग जानते हैं संदेश का नाम है श्रीमानो क्या ये वो समय है, और सवाल कहां से बना है? यहां से बना है। और तब उसे वचन से ढूंढा गया कि उसकी 2-3 जगहें हैं। आपको याद है भाई ब्रनम ने मिस्ट्रीज की एक सूची दी, भेदों की सूची दी गई। उन भेदों की सूची में पैराग्राफ 261 में मैं पढ़ रहा हूं, श्रीमानो क्या ये वो समय वाले संदेश से, द मिस्ट्री ऑफ वाटर बैप्टिज्म। यह भी एक भेद है जो 7वां दूत खोलेगा, पानी के बपतिस्मे का भेद। वे द एक्सट्रीम ट्रिनिटेरियनिज्म हैज ब्रॉट इट इनटू टाइटल्स ऑफ फादर सन होली गोस्ट। एक्सट्रीम ट्रिनिटी वाले उसको बाप बेटा रूह कुदुस के लक़ब में बपतिस्मा देते हैं। एंड द मिस्ट्री ऑफ द गॉड हैड बीन फुलफिल्ड इन द बैप्टिज्म ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन खुदाइयत का भेद, खुदाइयत नहीं कहेंगे, खुदायत्व कहेंगे, का भेद, यानी खुदावन कितने हैं? 1 हैं, 3 हैं, हम जानते हैं खुदा एक ही हैं। गॉड हेड का भेद जो कि संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, उसमें खुदाइयत का भेद प्रकट हो गया। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार, दैट द चर्च इन दिस टाइम वॉज टू रिसीव, कि ये यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का भेद कलीसिया इस युग में पाएगी। कलीसिया इस युग में पाएगी, जो कि संपूर्ण करेगी खुदाइयत के भेद को। कलीसिया को समझ में आ जाएगा कि खुदा 3 नहीं 1 हैं, इसलिए बपतिस्मा भी 3 अलग अलग लक़बों में नहीं, एक नाम में है, जो नाम प्रभु यीशु मसीह है। यह प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार इस युग में संपूर्ण होना था। कहां लिखा है? यह है सवाल। इसका राइट जवाब है प्रकाशित 3:9, 10 नहीं है ब्रदर,
प्रकाशित 3:8। निकालें मेरे साथ, बाइबल खोलें। प्रकाशित 3 और 8। ध्यान से समझें, यह संदेश फिलाडेल्फिया के युग को है और उसकी 8वीं आयत पढ़ रहे हैं। भाई हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज, अगर मदद मिल जाए, माइक दे दें 1 मिनट। हाँ भाई। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जी। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। नबी ने कहा, 3 शब्द नबी ने लिए, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खुला छोड़ा है, खुला द्वार। और आगे लिखा है, तेरे पास थोड़ी सामर्थ है, तूने मेरा वचन थामा है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। थोड़ी सामर्थ, मेरा वचन, मेरा नाम जुड़े हैं खुले द्वार के साथ। जिन्होंने संदेश सुना, आप लोगों ने भी सुना, बच्चों ने भी सुना, सीनियर सेक्शन वालों ने भी, कि ये खुला द्वार कब रखा गया। संदेश तो फिलाडेल्फिया का है, लेकिन यह फिलाडेल्फिया और लाउदीकिया के ओवरलैप पे हुआ। ओवरलैप का पीरियड कौन सा हुआ? ओवरलैप का पीरियड कौन सा हुआ? जब फिलाडेल्फिया खत्म हो रहा था, लाउदीसिया शुरू हो चुका था। तो यह पीरियड है 1906 के बाद, यानी यह वाला युग। इस युग में तूने मेरा नाम थामा है। यहां से नबी ने समझाया वो खुला द्वार क्या था? खुदाइयत का मुकाशफा। क्योंकि द्वार यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। मैं कौन? वचन। खुला द्वार यानी वचन का खुलना। वचन का खुलना मतलब एक रेवलेशन का आना। और कौन सा रेवलेशन था जो उतर के आया? खुदाइयत का, इस युग में। और वहां पे फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे का रेवलेशन रिस्टोर हुआ, जो कि कलीसिया कालों में जा चुका था। कलीसिया कालों में जा चुका था, वो अभी रिस्टोर हुआ 1906 के बाद। आपकी समझ में आ रही है? और तब दोबारा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना शुरू किया। सरदीस पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तो एक नाम से जीता है जो है नहीं। तो सरदीस में वो नाम नहीं है। थियातीरा में नाम जा चुका। पिरगमुस में आप मालूम है नाम जा चुका, टाइटल्स आ गए थे। अगली बार जब आप नाम का जिक्र पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं फिलाडेल्फिया में। यह है वो युग। और फिलाडेल्फिया का युग वेस्ली का युग था तो सही, लेकिन प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करें। संदेश नबी ने समझाया जब आया फिलाडेल्फिया का, वो फिलाडेल्फिया और लाउदीकिया के जोड़ पे था। यानी लाउदीसिया शुरू हो चुकी थी, फिलाडेल्फिया अंत हो रहा था। तो ये लगभग 1906 के बाद का जिक्र है, जो कि हमारा युग पड़ता है, जिसमें कि ये भेद खुला, खुदाइयत का भेद। और फिर वो बपतिस्मे में भी आया, जब लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना फिर से शुरू किया। स्क्रिप्चर, ये है स्क्रिप्चर आपके सामने, प्रकाशित 3:8। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे का भेद प्रकाशित वाक्य में कहां है? मैंने आपको आयत दे दी। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि मुझे भी आगे निकलना है। 8वां सवाल इसी के साथ जुड़ता हुआ अगला सवाल था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो एक बार नहीं कई बार चर्च में डिस्कस हुआ। यहां पे मैं एक बात कहूंगा आप बच्चों से जो कि सीनियर सेक्शन के हैं। आप जो संडे स्कूल का सीनियर सेक्शन अटेंड करते हैं, काइंडली एक डायरी बनाएं। आपसे पहले बच्चों ने ये किया था और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। 70s में 80s में मार्क्स आते थे। कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, जो शायद ऑफ कोर्स मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि लॉकडाउन भी रहा, लेकिन एक काम करें, प्रैक्टिस करें, एक डायरी बनाएं और जब संडे को मैसेजेस प्रचार हों, मेनली संडेज को, ट्यूसडे को भी होते हैं,
आप उनके अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। ओके? कई बातें जो आपके सिलेबस में हैं वो मैं कहूंगा मैसेजेस में ऑलरेडी डिस्कस होती हैं, और कुछ डिटेल्स और भी डिस्कस होती हैं, जहां से अगर सवाल बनेगा आप पोजीशन में होंगे कि आप उसका जवाब दे सकें। क्या आपकी समझ में आ रही है? ना, ध्यान से सुने। टीचिंग ऑन बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट इज कनेक्टेड टू, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की शिक्षा जुड़ी हुई है पहली हाय, दूसरी हाय, पहले दूत का संदेश, दूसरे दूत का संदेश। क्या है सही जवाब? टाइम निकलता जा रहा है, मैं फटाफट बोलूं क्योंकि सी फर्स्ट एंजल्स मैसेज। नाउ बच्चों समझो इस बात को, जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एंजल, सेकेंड एंजल, तो 3 एंजल्स थे जिनका मैसेज था। कहां लिखा है? रेवलेशन 14। चाहो तो पेपर पे लिख लो आप अभी। रेवलेशन चैप्टर 14, पहले दूत का संदेश, दूसरे दूत का संदेश, तीसरे दूत का संदेश। ये सारी बातें मैसेजेस में डिस्कस हो चुकी हैं। ना, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित 14 में फर्स्ट एंजल का मैसेज कौन सा था? लूथर। सेकेंड एंजल्स का मैसेज क्या था? जॉन वेस्ली। थर्ड एंजल्स मैसेज क्या था? पेंटिकॉस्टल युग वाला संदेश, पेंटिकॉस्टल एज मैसेज। समझ में आया आपके? तो टीचिंग ऑन बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट इज कनेक्टेड टू, तो सही जवाब होता तब थर्ड एंजल्स मैसेज। लेकिन थर्ड एंजल्स मैसेज की तो कोई चॉइस है ही नहीं। फर्स्ट एंजल्स मैसेज वॉज जस्टिफिकेशन, रॉन्ग। सेकेंड एंजल्स मैसेज वॉज सैंक्टिफिकेशन, रॉन्ग। अब आ जाते हैं चॉइस ए और बी पे। फर्स्ट वो, सेकेंड वो। पहली हाय पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरी हाय दूसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरी हाय तीसरा विश्व युद्ध। कांग्रेगेशन से पूछता हूं, ये 3 हाय 3 विश्व युद्ध है, कहां नबी ने, कौन से संदेश में नबी ने बताया? काइंडली नेम द मैसेज। संदेश का नाम बताओ। यू सी, नाउ आई अंडरस्टैंड कि रिजल्ट क्यों आ रहा है। वॉट इज द रीजन ऑफ दिस रिजल्ट? आई एम सॉरी, जो मेहनतें यहां से होती हैं वो ट्रांसफर हो नहीं रही हैं आपके घरों में। आई एम वेरी सॉरी, नॉट जस्ट फॉर द चिल्ड्रन, ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। जो बेचारे आए, चलो वो तो सुन रहे हैं, जो उनका क्या करें, जो आज आए नहीं, वो भारत का झंडा लहरा रहे हैं। या कहीं पर हैं। तीन हाय 3 वर्ल्ड वॉर्स। संदेश का नाम पशु की छाप 1954, लिख लीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपने पढ़ लेना चाहिए थे अब तक। एनी हाउ, क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पेश शिक्षा, पहली हाय पहला विश्व युद्ध, दूसरी हाय दूसरा विश्व युद्ध। नबी ने क्या समझाया? नबी ने समझाया जब पहला विश्व युद्ध आया उस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में प्रचार हुआ। अगर आप देखें तो अजूसा स्ट्रीट पर पवित्र आत्मा कब उतरा? 1906 में, जहां पे गिफ्ट चालू हुई। उसके बाद एक शिक्षा बनी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के को लेके कुछ दिनों के अंदर, और तभी आपको मालूम है 1911 से विश्व युद्ध आ गया।
तो यही वो टाइम था जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंटिकॉस्टल एज में उतरा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में सिखाया गया। समझ में आ रही है आपके? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में सिखाना शुरू कब से हुआ? पहले विश्व युद्ध के आसपास, बल्कि उसके बाद। तो टीचिंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट वो। दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। थैंक गॉड कईयों ने इसका सही जवाब दिया। बैप्टिज्म ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह, बैप्टिज्म ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। ए चॉइस पापों की माफी के लिए, बी मन फिराव के लिए, सी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, डी व्यवस्था पूरी करने के लिए। कितने कहते हैं पापों की माफी के लिए? कितने कहते हैं मन फिराने के लिए? कितने कहते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए? हाथ नीचे रखिए। और कितने कहते हैं व्यवस्था पूरी करने के लिए? बस जिन्होंने अब नाम हाथ उठाया आप ही सही हो। आप लोगों ने शायद सवाल ध्यान से पढ़ा नहीं, जानबूझ के सवाल ऐसे लिखा गया। यह सवाल प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे पे है ही नहीं। सवाल पढ़िए फिर से। अब समझ में आई आपके? यह सवाल होना चाहिए था बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा है उस पे सवाल है ही नहीं। यह सवाल है बैप्टिज्म ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने लिया था। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था वो किस लिए था? तो सही जवाब है व्यवस्था पूरी करने के लिए। तो आंसर है डी। यहां पे थोड़ा सा आपका चेक किया कि आप सवाल को कितना ध्यान से पढ़ते हैं। समझ में आई आपके? क्वेश्चन नंबर 10। बैप्टिज्म इज अ टाइप ऑफ, बपतिस्मा तस्वीर है पुनरुत्थान की, मरने की, गाड़े जाने की, नए आकाश और नई पृथ्वी की। कितने लोग कहते हैं पुनरुत्थान की? कितने लोग कहते हैं बपतिस्मा तस्वीर है मरने की? गॉड ब्लेस यू। कितने कहते हैं गाड़े जाने की? और कई कहते हैं नए आकाश नई पृथ्वी की। नया आकाश और नई पृथ्वी तो चॉइस है ही नहीं, दूर दूर तक चॉइस नहीं है। इसका सही जवाब सी है। देखिए, जब आप मरते हैं तब आप गाड़े जाते हैं। बपतिस्मा पानी रूपी कब्र में गाड़ा जाना है। कुछ लोगों ने कहा बपतिस्मा तस्वीर है पुनरुत्थान की। रॉन्ग। बपतिस्मा पुनरुत्थान की तस्वीर हो ही नहीं सकती। पुनरुत्थान तब हुआ जब जिला उठाने वाली सामर्थ मसीह की देह में उठी और वो जी उठे। तो आपका पुनरुत्थान कब गिना जाएगा? तब नहीं जब आप पानी से निकले। आयत तो ऐसी लिखी है, समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। पानी की कब्र में गाड़े गए और जी उठ के निकल के आ गए? नहीं, जी उठना तब गिना जाएगा जब आपको होली गोस्ट मिलेगा, जो कि जिलाने उठाने वाली सामर्थ है। जब खुदावंद आपके पानी के बपतिस्मे को कबूल करेंगे, पवित्र आत्मा दे के आपको जिला देंगे, वो है जी उठना। सो पानी का बपतिस्मा, सही जवाब इसमें था गाड़ा जाना। आप मर गए और गाड़े गए, क्योंकि नबी ने कहा कोई भी इंसान जिंदा आदमी को नहीं गाड़ता। इसलिए मन फिराना, पुराने जीवन का मरना जरूरी है।
ठीक है, अब इसे लगता हुआ एक सवाल आएगा आगे तो थोड़े आपके कॉन्सेप्ट को और खगोलेगा। चलिए अगला सवाल है, 11वां सवाल जानबूझ के ऐसे दिया गया, विच इज नॉट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का फल कौन सा नहीं है? कितने कहते हैं बी? कितने कहते हैं ए? चलिए मैं चॉइसेस पढ़ भी देता हूं। कौन सा आत्मा का फल नहीं है? ए लव। लव पे तो जाने कब से मैसेज चल रहा है, तो सर लव पे तो सभी टिक मारेंगे। बी रेवलेशन, यह आत्मा का फल नहीं है। बी चॉइस कितनों ने कहा? वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सी नॉलेज। डी टेम्परेंस, संयम। क्या आपका विचार? इसका सही जवाब है सी। बी क्यों नहीं है अब मैं समझाता हूं, आइए निकालिए मेरे साथ। गलतियों 5, गलतियों 5 उसकी 22वीं आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, एक मिनट, प्रेम भैया, ठीक है, हाँ ठीक है, आप आयत दिखा। प्रेम, प्रेम चॉइस में था, बिल्कुल था। तो आत्मा का फल प्रेम है, तो प्रेम तो है। आगे आनंद, आनंद, चलिए वो चॉइस में नहीं था। शांति, शांति भी चॉइस में नहीं थी। धीरज, धीरज। आगे कृपा, भलाई, कृपा, भलाई, विश्वास। अब एक मिनट रुकिएगा। नबी ने यहां पे टेस्ट था आपका एक पॉइंट को लेके, कि नबी ने फेथ को लेके क्या समझाया। फेथ इज अ रेवलेशन। इसलिए चॉइस में फेथ नहीं लिखा, उसकी जगह रेवलेशन लिखा। कुछ बात समझ में आई आपके? इसलिए रेवलेशन इज द राइट चॉइस, बिकॉज वो फेथ है आपका, तो वो भी आत्मा का फल है। सी, चलिए पढ़िए। नम्रता और संयम है। इंग्लिश में पढ़िए। लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटल, गुडनेस, फेथ। तो फेथ रेवलेशन है, लव है। आगे चलिए अगली आयत। मीकनेस, टेम्परेंस, चॉइस में टेम्परेंस है, बिल्कुल है, तो टेम्परेंस इज ऑल्सो द फ्रूट। ये बताइए नॉलेज कहीं पर है? नॉलेज आपको मिलेगा 7 सीढ़ियों में। गलतियों 5:22 में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज मिलेगी 7 सीढ़ियों में, जो कि दूसरा पत्रस पहले अध्याय में है। नॉलेज स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन में है। नॉलेज गलतियों 5:22 में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है। अच्छा सवाल था। यस, तो आपकी टेस्ट यहीं पे थी और आपको समझ में आ भी गया होगा कि इसका राइट चॉइस है नॉलेज। जल्दी आगे बढ़ें। हो सकता ही लगे आपको बाइबल से बाहर है, लेकिन ये भी एक्चुअली इन दिनों में, क्योंकि करंट डीलिंग्स में डिस्कस हुआ, इन द इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाइबल्स, 3 बाइबलों के समीकरण में, यानी कौन सी? स्वर्गीय, पिरामिड वाली और जो लिखित बाइबल है, तीनों बाइबल के समीकरण में पानी का बपतिस्मा, जैसे हम पानी का बपतिस्मा बाइबल में पढ़ते हैं, ऐसी पानी का बपतिस्मा पहली बाइबल में कहां लिखा है? सवाल यह था। इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाइबल्स, वाटर बैप्टिज्म कैन बी टाइड टू, पानी का बपतिस्मा किस राशि फल से जोड़ा जा सकता है? एक्वेरियस, एक्वेरियस है पवित्र आत्मा का दिया जाना, पानी का उंडेला जाना, तो राइट चॉइस एक्वेरियस नहीं है। पाइसेस, मसीहत की शुरुआत, वहां पे एक बंधी हुई औरत दिखाई गई जिसका नाम था एंड्रोमीडा, वहां कहीं पानी का बपतिस्मा है नहीं, लेकिन लोगों ने सोचा मछली तो पानी से आती है, इसलिए पानी के बपतिस्मा के साथ मछली जोड़ दो। दैट्स नॉट द राइट आंसर। टॉरस, यह है बुल, जो कि ओरायन और प्लेडी से जुड़ा है, जो कि है दूसरी आमद, तो वहां पर भी आपको वाटर बैप्टिज्म नहीं मिलेगा। कैप्रिकॉर्न, मरना, डेल्फाइनस, मछली का पानी से निकलना, यह है पानी का बपतिस्मा। सही जवाब था कैप्रिकॉर्न।
क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा आसान सा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, हजारों बार समझा गया। क्या कोई इंस्टेंस है पानी के बपतिस्मे बाइबल में जहां पानी का बपतिस्मा, ध्यान से सवाल समझिए, पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद लिया गया? मतलब पहले व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, उसके बाद पानी का बपतिस्मा। अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया, यस। कौन सा? कर्नीलियस। आपको याद है कर्नीलियस के घर में पहले पवित्र आत्मा उतरा, बाद में उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, तो जवाब बिल्कुल सही है। 14वां सवाल, अधिकांश लोगों ने यह भी सही किया, आफ्टर वाटर बैप्टिज्म द ओल्ड मैन इज डेड। पानी के बपतिस्मे के बाद पुराना मनुष्य मर जाता। अब यह सवाल सिद्धांतिक था, पानी के बपतिस्मे के बाद पुराना मनुष्य मर जाता है। यस सेड लेविंस्की, बट हैरी सेड नो। दो दोस्त हैं, एक का नाम है लेविंस्की, एक का नाम है हैरी। लेविंस्की कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात, हैरी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। हु इज राइट? कौन है सही? लेविंस्की, हैरी, बोथ, नन। लेविंस्की कौन कहते हैं? पानी के बपतिस्मे के बाद पुराना मनुष्य मर गया। हां, लेविंस्की ने कहा हां। अब कितने लोग एग्री करते हैं लेविंस्की के साथ? हाथ उठाएं। हैरी कहता है नहीं। कितने लोग हैरी के साथ एग्री करते हैं? दोनों ही सही हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? कोई भी सही नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं? अब मैं ऐसे हाथ जानता हूं जिन्होंने किसी पे भी हाथ नहीं उठाया। प्यारे भाई बच्चों, सिद्धांत समझो। पानी के बपतिस्मे के बाद पुराना मनुष्य मर जाता है। आमीन। लेविंस्की का कहना भी सही है, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी तो हम उसे गाड़ते हैं। तो लेविंस्की सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। हैरी ने कहा नहीं, क्योंकि शायद हैरी भविष्य घर का संदेश पढ़ के आ रहा है, जिसमें कि वो पुराना सांप तब मरता है फाइनली जब पवित्र आत्मा की आग उसे जलाती है। तो हैरी भी सही है, इसलिए दोनों ही सही हैं। पंद्रहवां सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, कई बार डिस्कस हुआ। व्हाट इज रॉन्ग विद वननेस बैप्टिज्म? जो वननेस डिनोमिनेशन वाले बपतिस्मा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसमें गलत क्या है? They baptize unto regeneration. Choice A. They baptize in the name of Father, Son and Holy Ghost. B. They baptize by sprinkling. C. They baptize by immersion. D. कौन सा है सही जवाब? C. चलिए खैर, कौन एग्री करते हैं C पे, स्प्रिंकलिंग पे? चलिए, वननेस वाले स्प्रिंकल करते नहीं। वननेस वाले स्प्रिंकलिंग नहीं करते, वो छिड़काव का बपतिस्मा नहीं देते। वननेस वाले, क्या पूछा गया? गलत है। तो सही बात है, वो डुबकी का बपतिस्मा देते हैं, और डुबा के बपतिस्मा देना तो गलत नहीं है। सवाल ये था गलत क्या है? दे बैप्टाइज इन द नेम ऑफ फादर सन होली गोस्ट, वो तो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में देते ही नहीं। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सवाल पढ़ा होता तो सही चॉइस पे वैसे भी पहुंच जाता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। वननेस वालों का नाम ही वननेस है, क्योंकि वो बाप बेटा दूसरे नाम बपतिस्मा नहीं देते, वो छिड़काव को बपतिस्मा देते नहीं, और वो डुबकी का बपतिस्मा देते हैं। डुबकी वाला चॉइस इसलिए नहीं हो सकता, वो गलत है ही नहीं, क्योंकि डुबकी का तो सही है। स्प्रिंकलिंग का वो देते नहीं, तो राइट चॉइस है, दे बैप्टाइज अनटू रीजनरेशन। समझे? इसका हिंदी करता हूं। वननेस वाले जब बपतिस्मा देते हैं तो कहते हैं आदमी का बदलाव, आदमी बदल जाता है पानी के बपतिस्मे पे। यह है गलत। आदमी बदलता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पे। हां, पानी का बपतिस्मा एक स्थिति जरूर है, जैसे जल, लहू और आत्मा 3 स्थितियां हैं। पानी का बपतिस्मा एक पहली स्थिति है जो पूरी करनी होती है, जिसके बाद फाइनली जब किसी को पवित्र आत्मा मिलेगा, फाइनली
रीजनरेशन यानी नया मसीह में नई सृष्टि वो बन जाएगा। यह है गलत जो कि वननेस वाले प्रचार करते हैं। ये 7 चर्च एजेस की किताब में उसी चैप्टर 1 में जहां से वाटर बैप्टिज्म का सब्जेक्ट उठाया गया वहां लिखा हुआ है, ये लाइन भी लिखी हुई है। आप चर्चेज किताब उठाइए, पढ़ लीजिए। कईयों ने इसका सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने दिया, कईयों ने शायद नहीं दिया। 16वां सवाल, कैन अ मैन बी बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट एवरी मिनट ऑफ हिज लाइफ एंड स्टिल बी लॉस्ट? क्या ऐसा हो सकता है कि एक मनुष्य पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से हर मिनट अपनी जिंदगी के बपतिस्मा प्राप्त हो, यानी पवित्र आत्मा बपतिस्मा प्राप्त जिंदगी भर हो हर मिनट, और फिर भी बर्बाद हो जाए? यस, कितने यस कहते हैं? कितने कहते हैं नो, नहीं? कितने कहते हैं नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता? जैसे एक बार पवित्र आत्मा मिल गया हो तो कब लॉस तो हो ही नहीं सकता। डी चॉइस, दोनों यस और नो दोनों ही करेक्ट हैं। कोई तो हाथ उठाओ भाई किसी चीज पे। चलिए खैर, मैं क्योंकि मेरा टाइम था पेपर डिस्कस करने का, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यह लाइन डायरेक्टली भाई ब्रैनम के मैसेज से उठाई गई लाइन है। कैन अ मैन बी बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट एवरी मिनट ऑफ हिज लाइफ एंड स्टिल बी लॉस्ट? आंसर इज यस। क्यों? तब नबी ने समझाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 तरीके से प्राप्त होता है। तब आपको 3 गोले बनाने पड़ेंगे। जब दूसरे गोले में पवित्र आत्मा मिले, जिसमें अनुभूतियां हैं, हा चिल्लाहट है, सब कुछ है, इमोशंस हैं, और हां वो पवित्र आत्मा है, लेकिन उसके बावजूद अंदर नहीं बदला, जो सोल है। कितनी बार ये पॉइंट चर्च में प्रचार हुआ, कितनी बार ये प्रचार हुआ। प्रॉब्लम, चर्च में बैठ के नोट्स अपने नहीं बताते बच्चे। जिस बच्चे ने अगर सही करा होगा वो बिल्कुल सही जवाब देगा, और वैसे कईयों ने इसका सही जवाब दिया भी है। क्या एक मनुष्य पवित्र आत्मा बपतिस्मा हर जिंदगी के मिनट लहमें प्राप्त करके भी लॉस्ट हो सकता है? जी हां, नबी ने बताया, लेकिन कंडीशन क्लियर करी, जिसने पवित्र आत्मा पाया अपने आत्मा में, प्राण में नहीं। मारिए आपके दूसरे गोले तक पवित्र आत्मा गया, तीसरे गोले को पवित्र आत्मा नहीं छुआ, अंदर से जीन्स नहीं जागृत हुई। समझ में आया आपके? तो ये था वो चॉइस, उसका आंसर है यस। 17वां सवाल अधिकांश लोगों ने सही किया, मेरे को डिस्कस करना वैसे चाहिए नहीं क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस से था। मैच द फॉलोइंग, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, इसका सही चॉइस है जॉर्डन। जस्टिफिकेशन, इसका राइट चॉइस है गिलगाल। सैंक्टिफिकेशन बेतेल। तो चॉइस सी इसका सही आंसर है। 18वां सवाल, न्यू बर्थ इंक्लूड्स वाटर बैप्टिज्म, सैंक्टिफिकेशन बाय ब्लड, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। चॉइस ए। चॉइस बी, वाटर बैप्टिज्म ओनली। चॉइस सी, ओनली बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। चॉइस डी, कैन नॉट बी डिफाइंड। राइट आंसर है पानी का बपतिस्मा, ये सैंक्टिफिकेशन बाय ब्लड, पवित्र आत्मा लहू के द्वारा पवित्रीकरण, और पवित्र आत्मा बपतिस्मा। चॉइस ए इज द राइट आंसर। क्यों? न्यू बर्थ इंक्लूड्स, नए जन्म में इंक्लूड। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय जब आप पढ़ें, टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को निकलना है कहीं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय जब आप पढ़ें, 3 चीजें हैं जो पृथ्वी पे एक बात में सहमत हैं, पानी, लहू और आत्मा। किस बात में? जन्म में। पानी का बपतिस्मा, लहू यीशु मसीह का लहू जिसको हम पवित्र होते हैं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इन 3 चीजों से एक प्रोसेस बनता है जिसे कहते हैं नया जन्म। तो राइट चॉइस है ए। खाली पानी बपतिस्मा गलत, खाली पवित्र आत्मा बपतिस्मा गलत। क्वेश्चन नंबर 19, यह सवाल जीन कॉन्सेप्ट के ऊपर था। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सही, सारे जवाब सही हैं, लेकिन सारे जवाब सही नहीं हैं। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट के दिन, पिलर ऑफ फायर एंटर्ड बिलीवर्स, आग का खंबा विश्वासियों के अंदर घुस गया। यह चॉइस गलत है। कारण
1954, 1954, मैसेज का नाम लिख लीजिए। 1954 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द होली गोस्ट, सवाल जवाब पवित्र आत्मा के ऊपर 1954 से यह सवाल उठाया गया आपके लिए। और सवाल इस तरह से उठाया गया, नबी ने समझाया कि ईद पेंतेकोस्त के दिन उस कमरे में एक्चुअली क्या हुआ। पवित्र आत्मा आया, जीभों में बट गया, फिर जीभों ने आके सिर पे जुम्बिश किया, यानी सिर पे आके टिक गई। कहीं ऐसा नहीं लिखा जीभ अंदर चली गई, जीभ ऊपर ही रही। तो पवित्र पिलर ऑफ फायर किसी के अंदर नहीं गया, तो चॉइस ए सही नहीं है। चॉइस नंबर 2, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है एकदम, नहीं, गॉड्स लाइफ एंटर्ड बिलीवर्स, बिल्कुल सही जवाब। खुदा का जीवन विश्वासियों के अंदर चला गया। अरे देखें तो सही जवाब नहीं है क्या? गॉड्स लाइफ इज व्हाट? होली गोस्ट। खुदा का जीवन क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किस रूप में प्रकट हुआ था? पिलर ऑफ फायर। वो ऊपर ही रह गया। क्या खुदा का जीवन अंदर नहीं गया? चॉइस 3, गॉड्स लाइफ वॉज बॉर्न इन साइड देम। यह है राइट आंसर। जीभ उन पे टिकी, पवित्र आत्मा, खुदावन का जीवन, पिलर ऑफ फायर उनके ऊपर टिका, लेकिन वो जीन जो अंदर थी वो जाग गई। ये सहना था, ब्रूडिंग थी, जिससे कि वो बीज अंदर जागृत हो गया, और जागृत होना ही वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर भरना शुरू हुआ। जो आप कौन? आपका नया मनुष्यत्व। यह है खुदा का जीवन अंदर से पैदा होना। तो यह है राइट चॉइस। चौथा तो केवल एक चॉइस देने के लिए दिया था, डव फ्लू इनटू देयर हार्ट। फाख्ता उनके हृदय में चली गई। फाख्ता पवित्र आत्मा उड़ता हुआ ऐसे नहीं गया, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल था। वो गाने के लिए लाइन बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन समझना तो कुछ और है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि पवित्र आत्मा जो अंदर बीज के रूप में था जाग गया। चॉइस सी। 20वां सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्ड एक्सोडस, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट वुड मीन, तीसरी निकासी के संदर्भ में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का क्या मतलब होगा? यह सवाल बेस्ड है इस बात पे। मैं एक बार पहले सामने आपको बना दूं। पहली निकासी में ये मिस्र से निकले, कनान गए। सॉरी, जल्दी लिख रहा हूं। दूसरी निकासी में व्यवस्था से निकले, अनुग्रह में आए, जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में मिला। तीसरी निकासी में पेंटिकॉस्टल युग से चालू होता है और जाता है मिलेनियम। मिलेनियम इटर्निटी में, जिसमें आप जानते हैं रैप्चर भी शामिल है। सवाल था, तीसरी निकासी के संदर्भ में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का क्या मतलब होगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या मतलब होगा? तो फॉलो करिए, तीनों निकासियों के एंड्स कहां हो रहे हैं। तो आपको फोकस करना है तीसरी निकासी खत्म कहां होती है। चॉइस है लीविंग पेंटिकॉस्टल लाउदीसिया। पेंटिकॉस्टल लाउदीसिया को छोड़ना तो शुरुआत हुआ ना भाई। रिसीविंग मलाकी 4, यह भी तो शुरुआती हुआ। नबी ने कहा मलाकी 4 पेंटिकॉस्टल युग से निकालता है बाहर। पेंटिकॉस्टल युग के बाद एक संदेश आएगा, वो संदेश को प्राप्त किया। बिकमिंग पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सॉरी, वो जवाब है दूसरी निकासी का। दूसरी निकासी में जब आप पुराने जीवन से नए जीवन को कबूल किए, प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेके, और आपको पवित्र आत्मा मिला, आप मसीह की देह के सदस्य बने। तो ये है दूसरी निकासी के संदर्भ में। यीशु मसीह की देह का हिस्सा बनना, यह है दूसरी निकासी के संदर्भ में, जब आपने पवित्र आत्मा पाया वहां। चौथी चॉइस, रिसीविंग अ न्यू बॉडी, और यह है राइट आंसर। क्या हुआ, कैसे हुआ?
जब आप पेंटिकॉस्टल एज से आगे बढ़े तो एक रैप्चर हुआ, और जब रैप्चर हुआ तो आपने एक नया बदन पाया। संदेश का नाम लिख लीजिए, संदेश का नाम है थिंग्स दैट आर टू बी। वो चीजें जो होने वाली हैं, थिंग्स दैट आर टू बी, वो बातें जो अब होने वाली हैं। ध्यान से सुनिए और समझिएगा। इस संदेश में नबी ने समझाया, जैसे आप एक बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, ऐसी आसमानी बाप भी आपके वहां जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, एक देह बना के, एक मैंशन बना के। और तब नबी ने क्या बोला? एक दिन आप उस बदन में पैदा हो जाएंगे। क्या बोला? आप उस बदन में पैदा हो जाएंगे। हर जन्म के साथ उसका बदन है। तीसरी निकासी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना कहां ले गया? एक बदन में। और आपको ट्यूसडे का मैसेज याद हो तो आपको समझ में आएगा। जब भाई ब्रैनम ने उस बदन को पहना, एक दर्शन में, दर्शन नहीं था वो, तो उससे भी बढ़कर था, जिसे हम थियोफनी कहते हैं, तो आवाज ने क्या कहा? यह है वो जिसे तुमने होली गोस्ट करके प्रचार किया। जिसे तुमने होली गोस्ट प्रचार किया वो ये है। वो क्या था? एक अय्याम जिसमें एक बदन है, जिसको पहन के लोग बैठे हुए हैं। आपकी समझ में आ रही है? तो तीसरी निकासी के संदर्भ में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब क्या होगा? एक नए बदन को प्राप्त करना। यह है राइट चॉइस। सवाल नंबर 21, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्रामेटिक सवाल, तो सभी को आना चाहिए, सबको आता ही होगा। क्या है ये? जीन ऑफ गॉड। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बनाया ऐसा तो कुछ लोगों ने सरपेंट पे टिक मार दिया। सांप जैसा दिखता है तो सांप ही होगा। नहीं, वो सांप नहीं था, वो डीएनए था, खुदा की जीन। 22वां सवाल, मैं जल्दी जल्दी चलूं। बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट इज सिनोनिमस विद, पवित्र आत्मा बपतिस्मा सिनोनिमस है, यानी कि समान है किसके? ए वेविंग ऑफ शीफ, बी पेंतिकोस्त का पर्व, सी प्रायश्चित का पर्व, डी झोपड़ियों का पर्व। इसका राइट चॉइस है वेविंग ऑफ द शीफ। सही जवाब है पूले का हिलाया जाना। संदेश का नाम लिख लीजिए, लिखिए, संदेश का नाम भी दे रहा हूं आपको। यह सूर्य उदय का समय है। उस मैसेज में पढ़िए। तेईसवां सवाल, अकॉर्डिंग टू जीन कॉन्सेप्ट, जीन के सिद्धांत के अनुसार, ये जीन कॉन्सेप्ट क्या था? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेके था, जो समझाया गया पहले भी। आई थिंक सिलेबस में भी रखा गया था, पहले सिलेबस में था, बताया भी गया है, क्योंकि होली गोस्ट का बैप्टिज्म जीन कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। चॉइस ये कहती है, अ कॉकलबर विल रिमेन कॉकलबर एंड वीट विल रिमेन वीट। कॉकलबर यानी गोखरू गोखरू रहेगा और गेहूं गेहूं ही रहेगा। चॉइस बी, अ कॉकलबर कैन बिकम वीट, एक गोखरू गेहूं बन सकता है। चॉइस सी, अ वीट कैन बिकम कॉकलबर, गेहूं गोखरू बन सकता है। चॉइस डी, दोनों बी और सी सही हैं। कितने कहते हैं ए? गॉड ब्लेस यू। कितने कहते हैं बी? कितने कहते हैं सी? और डी कौन कहते हैं? दोनों बी और सी सही हैं। मेरे ख्याल में मुझे ई की चॉइस लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई है नहीं, सबकी शायद ई पे चॉइस है। किसी ने हाथ उठाया ही नहीं किसी चीज पे भी। मैं सोचता हूं इस सेशन के बाद कुछ तो समझ गए होंगे आप लोग। मात्र चर्च आना, एक कुर्सी गर्म करना काफी नहीं है।
चॉइस एक, गोखरू गोखरू ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा। गलत। जानबूझ के सवाल रखा गया था और उसको नबी ने कई जगह पे बोला भी, जो बीज बोगे वही काटोगे। लेकिन सवाल आपने पढ़ा नहीं है, सवाल जीन सिद्धांत का जो जुड़ा है जन्म के साथ। चॉइस बी कहता है अ कॉकलबर्ग कैन बिकम वीट। नबी ने कहा जो बाहरी खोल था आपका वो था गोखरू, लेकिन जो पुरानी पैदाइश से था, लेकिन अंदर आपके एक बीज था जो कि गेहूं था। एक दिन क्या हुआ, जब वो पुराना मनुष्यत्व मरा और नया मनुष्य जी गया, तो इस बाहर से जो गोखरू का आवरण था, अंदर से गेहूं का जीवन निकल के आया। सो गोखरू गेहूं बन सकता है। संदेश का नाम लिख लीजिए, सवाल जवाब 1964 में, टाइम नहीं है पढ़ना है, उसमें दिया हुआ है, पढ़िएगा। सवाल जवाब 1964। मसीह अपने वचन में ही प्रकट होता है 1965। ये एक और मैसेज है जहां पे नबी ने समझाया। समझ में आई आपके? एक गोखरू गेहूं बन सकता है, यह है सही चॉइस। गेहूं गोखरू बन सकता है, यह कोई चॉइस नहीं है और ना नबी ने समझाया। तो बी और सी दोनों सही है, यह भी नहीं हो सकता। तो राइट चॉइस बी है। 24वां स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, एक आयत को लेके। हां, हो सकता है थोड़ा सा लगे सिलेबस से बाहर था, लेकिन था सिलेबस का ही सवाल, बपतिस्मे को लेके। मुझे भी एक बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह ने कहां कहा? अभी एक बपतिस्मा बाकी है जो मुझे लेना है। इसका राइट चॉइस है बी, लूका 12:50। टाइम नहीं कि मैं पढ़ूं क्योंकि मुझे निकलना है। लूका 12:50 साफ साफ लिखा है, मुझे अभी एक बपतिस्मा लेना है। आप जानते हैं वो कौन सा है? मृत्यु का बपतिस्मा जो उन्हें लेना था, जिसके लिए वो एक कुर्बानी के रूप में धोए गए यर्दन में। 25वां सवाल तो मेरे ख्याल में आप सबने सही दिया है। भाई ब्रनम ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहां पाया? वैसे सिंपल सवाल कहां पूछोगे यार, हैं? 4 नंबर तो पक्के। इन द क्लाउड, कौन कहते हैं बादल में? इन अ कोल शेड, एक कोयले के गोदाम में। गॉड ब्लेस। इन ग्रीन्समिल इंडियाना। इन सबीनो कैनियन, जहां आवाज ने कहा तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। ध्यान से संदेश सुने, इसका सिंपल सा जवाब था इन अ कोल शेड। सबको मालूम है एक कोयले का गोदाम था जहां भाई बहनों ने कहा मुझे खुदा मिला, जहां मेरा कन्वर्जन हुआ। एक उन्होंने सफेद सलीब देखी जिसमें से बारिश की बूंदें सरीखे उनके मुंह पे आ रही थी। सो एनी हाउ, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक द क्वेश्चन पेपर इज डिस्कस्ड एंड आप सब लोगों ने अपने आप को एनालाइज कर ही लिया होगा और देखा होगा कि आप संदेश में, बाकी आगे मैं लाइन पूरी करना नहीं चाहता, आप खैर समझ नहीं होंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, कुछ सिद्धांत भी डिस्कस किए। समय हमारे पास लिमिटेड था। मैं इस मीटिंग को अब यहीं ख़त्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बाद थोड़ा सा आप जागृत हो जाएं। ये संदेश जिनके नाम मैंने लिखे उठाएं, फिर से इन्हें पढ़ें और देखें कि क्या लिखा हुआ है। और ख़ास तौर से आप, मैं बच्चों से कहूँगा, एक डायरी बनाओ और जब संडे के मैसेजेस प्रचार हों प्लीज़ एक नोट उनका बनाइए और लिखिए। आप देखिए आप प्रोग्रेस करके जाने कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावंद, आपने तौफीक दी कि आज संडे स्कूल के इस पेपर को हम बैठ के डिस्कस कर सके। केवल यही नहीं खुदावन, हमने कुछ और बातें भी देखी। दुआ है खुदावन आप तौफीक दें कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो 1+ निकलें। मेरी दुआ है कि आपका भय इन बच्चों में समा जाए। दुनिया को छोड़, इंटरनेट को छोड़, जिस पे ये काफ़ी देर घूमते भ्रमण करते, वचन में भ्रमण करें
और खुदावन तौफीक दे माँ बाप के भी साथ हों कि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत दें। दुआ है खुदावन की मीटिंग के बाद जब बहनें जो टीचर्स हैं माँ बाप से और बच्चों से मिलती हैं, आप उनकी मदद करें। मैं भी जब आगे जाता हूँ काम पे मेरी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड रियली ब्लेस यू। बाकी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टिल आप लोगों ने ठीक किया, गॉड रियली ब्लेस यू। बट माई प्रेयर इज कि आगे के लिए आप थोड़ा और इंप्रूव कर सकें। गॉड ब्लेस यू।